Hello everyone, welcome to today's discussion on time use survey, समय उपयोग सर्वेक्षण। देखिए, ये एक सर्वेक्षण है इंटरनेशनल लेवल पर कि मेल और फीमेल द्वारा कितना समय का उपयोग किया जाता है और उनके द्वारा उपयोग किए गए समय का जो सर्वेक्षण हुआ उसकी क्या प्रासंगिकता है। और खासकर देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ टाइम यूज सर्वे फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स? In 2024, females spent 137 minutes per day on unpaid caregiving services for household members, while males spent 75 minutes, says the time use survey. Take a look at the key highlights of the survey. You learn about the पर्पल इकोनॉमी एंड केयर इकोनॉमी। मतलब आप ये समझिए कि टाइम यूज सर्वे के अनुसार 2024 में महिलाएं घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर प्रतिदिन 137 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 75 मिनट खर्च करते हैं। तो इसी चीज को सर्वेक्षण पर जो सामने आई है उस पर हम नजर डालेंगे और खासकर पर्पल इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी के बारे में भी हम जानेंगे। दिस टॉपिक्स relate economy. UPSC has asked questions on the care economy and monetized economy and the role of women. In preliminary questions have been asked about employment and key government surveys or reports. Since time use survey published by only a few countries in the world, it is important for UPSC CSE aspirant to understand its objectives and major highlights. Why in the news this topic? The National Statistics Office NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation has released the second All India Time Use Survey for the period January to December 2024. It measures time dispositions by the population on different activities. The primary objective of the survey is to measure the participation of men and women in paid and unpaid activities. The first All India survey was conducted during January to December 2019. Only a few countries around the world like Australia, Japan and Republic of Korea, New Zealand and USA and China conduct such a national time use survey to analyze how people allocate their time to various daily activities. अर्थात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए दूसरा अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण जारी किया। यह विभिन्न गतिविधियों पर आबादी द्वारा समय के उपयोग को मापता है। सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण जनवरी से दिसंबर 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। दुनिया भर में केवल कुछ ही देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, अमेरिका और चीन इस तरह का राष्ट्रीय समय उपयोग सर्वेक्षण करते हैं ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि लोग विभिन्न दैनिक गतिविधियों के लिए अपना समय कैसे आवंटित करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है व्हाट इज द टाइम यूज सर्वे, TUS। द टाइम यूज सर्वे इज ए नेशनल लेवल सर्वे दैट मेजर्स हाउ पीपल एलोकेट देयर टाइम अक्रॉस वेरियस डेली एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पेड, अनपेड एंड सोशल एक्टिविटीज। इट प्रोवाइड्स comprehensive data on time spent in employment, unpaid caregiving, domestic work, learning, leisure and self-care activities. Conducted by the National Statistics Office
means NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. First time use survey 2019 conducted between January to December, and second survey January to December 2024 conducted between means जनवरी से दिसंबर के बीच का डेटा. Aim of the survey: measure the participation of men and women in paid and unpaid activities, analyze time spent on unpaid, caregiving, domestic services and voluntary work, provide insight into learning, socializing, leisure and self-care activities, support policy formulation by capturing gender disparities and time allocation patterns. अब देखिए यहां पर आप देखिए बोर्ड में यदि आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज की बात करें तो देखिए यदि एम्प्लॉयमेंट में देखें तो मेल का परसेंटेज ज्यादा है 60.8%, फीमेल का 20.7%, जबकि अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स मतलब अनपेड बिना पैसे के बिना वेतन के, यहां पर देखिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी फीमेल का परसेंटेज है 81.5%, मेल का 27.1%. अनपेड केयर गिविंग फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स में अभी आप देख लीजिए तो यहां पर फीमेल्स का परसेंटेज ज्यादा है 34%, जबकि मेल का 17.9%. कैप्चर्स अनपेड मतलब मैं आपको बता रहा हूं की फीचर्स एंड यूनिकनेस. कैप्चर्स अनपेड वर्क, मेजर्स टाइम स्पेंट ऑन अनपेड हाउस होल्ड चोर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स aligns with global best practices followed by Australia. Gender specific analysis highlights differences in time use patterns. Large sample size covers 1,39,487 households and 4,54,192 individuals. Detailed time tracking uses 30-minute time slots to record multiple. Data collection via CAPI uses computer assisted personal interviews. So now let us start. TUS is different from other household surveys because it captures time disposition and different aspects of human activities, be it paid, unpaid, and other activities with such details with help measures various aspects of gender statistics. It also provides information on time spent on learning, socializing, leisure activities, self-care activities, etc. by the household members. यानी TUS अन्य डोमेस्टिक सर्वे से अलग है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर समय के बैक को दर्शाता है, चाहे वो भुगतान किया गया हो, अवैतनिक हो या अन्य गतिविधियों में, ऐसे विवरणों के साथ जो लिंग सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं को मापने में मदद करते हैं. ये घर के सदस्यों द्वारा सीखने, सामाजिक मेलजोल, अवकाश गतिविधियों, स्व देखभाल गतिविधियों आदि पर खर्च किए गए समय की जानकारी भी प्रदान करता है. टाइम स्पेंट बाय फीमेल्स इन ए डे on unpaid domestic services for household members reduced by 10 minutes to 289 minutes in 2024 from 299 minutes in 2019. However, female spent 201 more minutes in a day in unpaid domestic services for household members than their male counterparts last year. अर्थात ये समझिए कि डोमेस्टिक मेंबर्स के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर महिलाओं द्वारा एक दिन में बिताया गया समय 2019 में 299 मिनट से 10 मिनट कम होकर 2024 में 289 मिनट हो गया. हालांकि पिछले साल महिलाओं ने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर एक दिन में 201 मिनट अधिक बिताए. The gap between the minutes spent by the females than males in a day is the
sharpest for unpaid domestic work, followed by unpaid caregiving services for household members. Females spend 62 more minutes in a day in unpaid caregiving activities for household members than males, with the average time spent by females registering an increase to 137 minutes in 2024 from 134 minutes in 2019. मतलब ये कि एक दिन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा बिताए गए मिनटों के बीच का अंतर अवैतनिक घरेलू कामों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं का स्थान आता है। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल गतिविधियों में एक दिन में 62 मिनट ज्यादा बिताए। महिलाओं द्वारा बिताया गया औसत समय 2019 में 134 मिनट से बढ़कर 2024 में 137 मिनट हो गया। As many as 41% of females aged 15 to 59 years participated in caregiving for their household members, while male participation in such caregiving was almost half at 21.4%. This corroborates the Indian social fabric, wherein most of the caregiving responsibilities for household members are borne by the females, the ministry said. यानी 15 से 59 वर्ष की आयु की 41% महिलाओं ने अपने घर के सदस्यों की देखभाल में भाग लिया, जबकि इस तरह की देखभाल में पुरुषों की भागीदारी लगभग आधी यानी 21.4% थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह भारतीय सामाजिक ताने बाने की पुष्टि करता है, जिसमें घर के सदस्यों की देखभाल की ज्यादातर जिम्मेदारियां महिलाओं द्वारा उठाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज टाइम स्पेंट इन ए डे पर पार्टिसिपेशन, यानी इसका मतलब यह कि प्रति प्रतिभागी एक दिन में बिताया गया औसत समय। फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, हाउएवर मेन स्पेंट 132 मिनट्स मोर देन फीमेल्स। हालांकि रोजगार और संबंधित गतिविधियों के लिए पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में 132 मिनट अधिक समय बिताया है। इसका मतलब महिलाओं द्वारा 341 मिनट, पुरुषों द्वारा 473 मिनट। Around 83.9% females participated in unpaid activities during a day in 2024, almost the same as the level of 84% in 2019. While for paid activities, their share increased 20.6% in 2024 from 17.1% in 2019. The participation rate of males in unpaid activities increased to 45.8% in 2024 from 43.9% in 2019, while for paid work their share increased to 60.5% from 54.8%. मतलब यह हुआ कि 2024 में लगभग 83.9% महिलाएं दिन में अवैतनिक गतिविधियों में भाग लिया, जो 2019 में 84% के स्तर के लगभग समान है। जबकि भुगतान वाली गतिविधियों के लिए उनकी हिस्सेदारी 2019 में 17.1% से बढ़कर 2024 में 20.6% हो गई। अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों की भागीदारी पर 2019 में 43.9% से बढ़कर 2024 में 45.8% हो गई, जबकि सशुल्क कार्यों में उनकी हिस्सेदारी 54.8% से बढ़कर 60.5% हो गई। फॉर सोशलाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब सामाजिक और संचार, सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक अभ्यास। फीमेल स्पेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एट 139 मिनट्स इन बोथ 2024 एंड 2019. Males reduced their time for such activities to 138 minutes from 147 minutes. यानी आप ये समझिए, महिलाओं ने 2024 और 2019 दोनों में समान समय 139 मिनट बिताया। पुरुषों ने ऐसी गतिविधियों के लिए अपना समय 147 मिनट से घटाकर 138 मिनट कर दिया। अब यहां आपको हम ये समझाने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज। पेड वर्क इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर वेज और सैलरी और कैजुअल लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थात भुगतान किए गए वस्तु कार्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वरोजगार, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नियमित मजदूरी या वेतन या आकस्मिक श्रम शामिल है।
Unpaid activities include care for children, sick, elderly, differently abled persons in their own households, production of other services for own consumption, production of goods for own consumptions, voluntary work for production of goods and services in households and market, non-market units, unpaid training work and other unpaid work for production of goods and services. अर्थात अवैतनिक गतिविधियों में अपने घरों में बच्चों, बीमार, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल, स्वयं के उपभोग के लिए अन्य सेवाओं का उत्पादन, स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन, घरों और बाजार या गैर बाजार इकाइयों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक प्रशिक्षु कार्य और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए अन्य वैतनिक कार्य शामिल है। अब हम डिटेल में आप चर्चा करेंगे जो कि हमारा टॉपिक में भी था मेंशन, पर्पल इकोनॉमी एंड केयर इकोनॉमी। According to United Nations Economist Network, the purple economy, also sometimes referred to as the care economy, obtains its name from the color adopted by many feminist movements. It represents a new vision of economics that recognizes the importance of care work, empowerment and autonomy of women to the functioning of the economies, well-being of societies and life sustainability. मीन्स संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्री नेटवर्क के अनुसार बैंगनी अर्थव्यवस्था, जिसे कभी कभी देखभाल अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम कई नारीवादी आंदोलनों द्वारा अपनाए गए रंग से प्राप्त हुआ। यह अर्थशास्त्र के एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज, समाजों की भलाई और जीवन की स्थिरता के लिए देखभाल कार्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वायत्तता के महत्व को पहचानता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ILO defines care economy as a set of activities related to the provision of care and support to individual households and communities, including both paid and unpaid work. Care economy encompasses a broad spectrum of labor and resources dedicated to meeting the care needs of individual and families. अर्थात अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन केयर इकोनॉमी को व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों को देखभाल और सहायता प्रदान करने से संबंधित गतिविधियों के एक समूह के रूप में डिफाइन करता है, जिसमें भुगतान और अवैतनिक दोनों तरह के काम शामिल हैं। केयर इकोनॉमी में व्यक्तियों और परिवारों की देखभाल की जरूरतों का पूरा करने के लिए समर्पित श्रम और संसाधनों का एक व्यापक दायरा शामिल है। One of the characteristics of the care economy is that women are disproportionately represented here. According to the World Health Organization, women form 70% of the total workers in health and social sectors with a gender pay gap of around 28% on average, making it one of the most biased sector in terms of wage payments. मतलब यह हुआ कि केयर इकोनॉमी मीन्स देखभाल अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह है कि यहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में कुल कर्मचारियों में से 70% महिलाएं हैं, जहां लिंग के आधार पर वेतन अंतर औसतन लगभग 28%, जो इसे वेतन भुगतान के मामले में सबसे पक्षपाती क्षेत्रों में से बनाता है। The underpayment and undervaluation of care work contribute to its invisibility in economic metrics, resulting in market failure. According to the recent policy deal, the contribution of care work to India's GDP has been estimated to be around 15 to 17%. This figure underscores the economic value that paid, unpaid, and underpaid care work provides, although it is often overlooked in traditional economic measures. देखभाल कार्य के लिए कम भुगतान और कम मूल्यांकन आर्थिक मापदंडों में इसकी शुरुआत अदृश्यता में योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में विफलता होती है। हाल ही में जारी नीति संक्षिप्त विवरण के अनुसार भारत के GDP में देखभाल कार्य का योगदान लगभग 15 to 17% होने का अनुमान है। यह डेटा अवैतनिक और कम भुगतान वाले देखभाल कार्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले आर्थिक मूल्य को रेखांकित करता है। हालांकि पारंपरिक आर्थिक उपायों में इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। द 5 R
framework provided by the International Labour Organization has often been suggested as a key to understanding and improving the efficiency, sustainability, and fairness of care work. The framework includes recognizing, reducing, and redistributing unpaid care, ensuring adequate reward system for paid care workers, and prioritizing representation of caregivers and care recipients from policy design to evaluation. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रदान किए गए 5R ढांचे को अक्सर देखभाल कार्य की दक्षता, स्थिरता और निष्पक्षता को समझने और सुधारने की कुंजी के रूप में सुझाया गया है। इस ढांचे में अवैतनिक देखभाल को पहचानना, कम करना और पुनर्वितरित करना, भुगतान किए गए देखभाल श्रमिकों के लिए पर्याप्त पुरस्कार प्रणाली सुनिश्चित करना और नीति डिजाइन से लेकर मूल्यांकन तक देखभाल करने वालों और देखभाल प्राप्तकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देना शामिल है। अब देखिए ये टॉपिक हमने क्यों लिया, इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नाउ लेट अस कंसीडर ए क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइम यूज सर्वे ए बिनियल रिपोर्ट measures the time dispositions by the population on different activities. Second is, for the first time, time spent by females on employment and related activities is more than men. Third is, purple economy recognizes the importance of care work done by women. Which of the following statement is correct? तो देखिए इस लेक्चर में कोई यदि आपने सुना है, गंभीरता से और समझने का प्रयास किया है, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।